کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل۔ جموں کشمیر ہند اسمبلی سیشن آز ایل جی منوج سنہا سند خطبہ ست شروع سپدمت یتھ دوران ایل جی منوج سنہن وون جموں کشمیر مز تبدیلی ہند اخ نو دور شروع سپدمت تو یہ جموں کشمیر ہز تعمیر ترقی حوالہ سرکار طرف کئی قدم تلنے آمت تت نوجوان روزگار فراہم کرنس حوالہ تہ سرکار سنجید یل زن تمو وون جموں کشمیر ہند ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ مرکزی سرکار سنجید ایل جی منوج سنہن بجٹس حوالہ کت کران وونمت بجٹس مز پریت ورگو خیال تھونا آمت یت زن پریت طبقہ کن لوکن راحت وات۔ For the first time this winter, my government, through close coordination between the administration and elected representatives, took comprehensive measures to minimize disruptions to the daily lives of the people during snowfall. This synergy enabled one of the swiftest restorations of essential supplies in Kashmir, including efficient snow clearance. Additionally, the power supply remained one of the most reliable with minimal interruptions. I extend my sincere appreciations to my government for their dedication and unwavering commitment to meeting the expectations of the people and ensuring seamless winter preparedness. This session is not just a legislative formality, but a reflection of your commitment to good governance, transparency, and inclusive development. This budget carries historic significance as it is the first in over 7 years to be presented by an elected government in Jammu and Kashmir. It symbolizes the people's power as it is prepared by the representatives chosen by the people themselves. This budget is not merely a financial document. It is a testament to the aspirations of the masses, reflecting their hopes for a brighter future. For the first time, Honorable Chief Minister has personally chaired meetings for all 20 districts separately, engaging directly with the elected representatives to understand their aspirations, regional needs, and development priorities in budget formulation. The voices of the people are again shaping the allocation of resources and the prioritization of development goals. This budget is a true celebration of democracy, an expression of the dreams and expectations of every household, every community, and every region of Jammu and Kashmir. It marks a moment of renewal and empowerment where the collective efforts of the people's representatives are shaping the future of this land. This budget represents a new era of participatory governance, ensuring that the needs and aspirations of the common man remain at the heart of policy making. One of the foremost aspirations of the people of Jammu and Kashmir is the restoration of full statehood. My government remains steadfast in its commitment to addressing this legitimate desire of the citizens of Jammu and Kashmir. My government recognizes the emotional and political significance of the statehood for the people and is actively engaging with all stakeholders to facilitate this process in a manner that ensures peace, stability, and progress. We take immense pride in our composite culture and centuries-old traditions of amity and brotherhood. My government is committed to preserving the unity and diversity that defines Jammu and Kashmir. It is firmly committed to maintaining peace. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گورنر سند خطبہ پتہ ذرائع ابلاغ ست کت کران وونمت دفعہ 370 حوالہ حکومت طرف اخ ریزولوشن اسمبلی ذریعہ پاس کرنے آمت تو موجودہ سیشنس دوران یہ بجٹ پیش کرنے یہ تت روز کوشش سیشنس دوران ین ممبر اسمبلیوں طرف زیادہ کھت زیادہ لوکن ہند مسئلہ وتلاؤن۔ ہاؤس کے باہر کہاں بات ہوگی، ہاؤس کے اندر بات کریں گے، یہ طریقہ نہیں ہے نا، ہم ہاؤس کے باہر بات نہیں کرتے، کام کل سے شروع ہو جائے گا۔ آج تو صرف ایل جی صاحب کا خطبہ تھا اور اوبیچوری ریفرنسز دونوں ہو گئے ہیں، کل سے ایل جی صاحب کے خطبے پہ بحث شروع ہوگی۔ تمام یہ جو آپ سوال کر رہے ہو یہ ساری باتیں جو ہیں مجھے یقین ہے کہ آنریبل ممبرز جو ہیں وہاں پہ اٹھا لیں گے۔
हुकूमत को जो कहना होगा हम वहाँ डिबेट के दौरान कह देंगे। एलजी मनोज सिन्हा जी का जो आज का खुतबा था वो सरकार का खुतबा था, उसको किस तरह से आप लेते हैं? उस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है ना आपके इस खुतबे में हमारा कोई रोल नहीं है? जब एलजी साहब खुतबा देते हैं तो हुकूमत की तरफ से देते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, ये हमारा काम है, मिलके करना है। सर, पीडीपी कह रही है कि धारा 370 पर कोई मेंशन नहीं हुआ है, आप लोगों ने उस पर भी बात की थी? अब हमने जितना उस पर करना था पहले सेशन में किया ना, हमारा रेजोल्यूशन आज भी कायम है, हाउस ने पास किया। यही लोग हैं पीडीपी और बाकी जिन्होंने उसको पास करने में मदद की, वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है, बड़ी बात है। आप लोग तो शायद सोच रहे थे कि जो भी रेजोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेके होगा वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ नहीं, आज भी कायम है। तो इसमें और बात करने की जरूरत क्या है? ये थोड़ी ना कि हम बार बार यही बात करेंगे। हमने जो करना था पहले सेशन में कर दिया। अगर हमने वो रेजोल्यूशन नहीं लाया होता तब चलिए हम इस पे बहस करते, लेकिन रेजोल्यूशन लाया हमने, हाउस ने पास किया, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास हुआ, अब और क्या बात करनी है? नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी बजट सेशन हवाले कत करान वोनमुत अल पल तमाम मेंबरान असम्बली यसान सेशन गि खुश असलूबी सान अंजाम वातुन युत जन लूकन सत करना आमुत वाद पूरे करित आम लूकन राहत वादे। ये सेशन तो कश्मीर में भी लगा था और आज जम्मू में लगा है, और जो हमने वादा लोगों को कहा था कि जम्मू में भी दरबार होगा, उसी सिलसिले में आज ये सेशन जम्मू का लगा है। अब अगला जो लगेगा वो कश्मीर में लगेगा, तो लिहाजा कोई काफ़ी वक्फा नहीं है, थोड़े ही मैं ख्याल 2 महीने से बाद ये सेशन लगा है और आपके सामने एक अच्छा सेशन बजट सेशन है। और जो लोगों के ऑनरेबल एमएलएज को मौका मिलेगा उनको अपने मुद्दे उठाने का, लोगों के जो कंसर्न्स हैं वो असेंबली के अंदर उठाने का मौका मिलेगा और अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। और उसमें जहाँ तक ताल्लुक है लोगों का, कहीं ना कहीं काम निकलेंगे और सरकार की एक जो जवाबदेही होती है वो असेंबली में ऑनरेबल एमएलए अपने अपने सवाल पूछ के लेते हैं, तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है स्टेट हुड का, वो हमने उस समय भी कहा था और आज भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर का जो स्टेट का दर्जा है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी वादा है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का हिंदुस्तान का उनका भी वादा है। तो लिहाजा उनके जो वादा हम उम्मीद करते हैं वो अपना वादा पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब हालात ठीक हो जाएंगे उस समय स्टेट दिया जाएगा। और आज जब हालात ठीक हो गए, इलेक्शन हो गया, असेंबली अपनी काम कर रही है, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा वापस। देखिए, अपोजिशन का काम है कहना, उनका अगर वो कुछ बोलेंगे ही नहीं फिर अपोजिशन किस चीज़ के हुए, इसलिए उन्होंने अपनी बात रखनी है, हमने अपनी बात रखनी है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि अपोजिशन का अपना रोल है, रूलिंग गवर्नमेंट का अपना रोल है, और दोनों ने अपना अपना रोल अदा करना है, और यही हमारी हिंदुस्तान के आइन की और हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो हिजब इख्तलाफ लीडर सुनील शर्मान रियासत दर्ज बहाल करने हवाले कत करान वोनमुत वज़ीर आला पजन लूकन हिंद दोयम मसला हल करें, स्टेट हुड अन भारतीय जनता पार्टी वापस। हालांकि ये देखिए, स्टेट हुड भारतीय जनता पार्टी देगी, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। आज जो जिस डॉक्यूमेंट में इन्होंने स्टेट हुड में कहा है कि हम सारे ऑल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करेंगे और स्टेट मांगेंगे, मैं उमर अब्दुल्ला साहब को गुलिस्तान चैनल के माध्यम से एक राय देना चाहता हूं। आप अपने कमरे में बैठिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बैठिए, स्टेट हुड हम लाएंगे, स्टेट हुड आ जाएगा, प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट की है। अब जिन इश्यूज पे, जिन क्वेश्चंस पे, जिन इनके वादों पे लोग इनसे सवाल पूछते, उनने इन सारे इश्यूज को, सारे सवालों को एक बक्स में बंद करके बाहर से स्टेट हुड का नाम रख दिया है। आपको बात करनी चाहिए थी इस वक्त कि आप बिजली कब तक देंगे, आपको बात करनी चाहिए थी आप सिलेंडर कब तक देंगे, आपको बात करनी चाहिए थी आप राशन कब तक देंगे। वो तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक शब्द भी कहीं नहीं है। ये कंप्लीट एंडोर्समेंट है मोदीज विजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इस गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया है मोदी के विजन को, अपना इन्होंने कुछ नहीं रखा है इसमें। एक शब्द मुझे बोलिए, जो इनने वादे किए थे, एक भी वादा जिसका जिक्र इनने किया है वो तो कहीं दिखा नहीं। देखिए, जो सो कॉल्ड योम शोहदा इनका 13 जुलाई को था, जो ट्रेटर्स थे, जिसे मैं स्टेट ह्यूमिलेशन डे मानता हूं,
जिस महाराजा का ये सब कुछ खाते हैं, जिस महाराजा ने यहाँ पे स्टेट को बनाया, जिस महाराजा ने इस जम्मू कश्मीर को फ्लड चैनल दिया, जिस महाराजा ने यहाँ पे J&K बैंक दिया, जिस महाराजा ने यहाँ पे SPM कॉलेज दिया, SMHS हॉस्पिटल दिया, स्टेट गेस्ट हाउसेस दिए, उस सारी चीजों को एंजॉय करते हैं। और उन्हीं महाराजा के ट्रैक्टर्स को, उसी महाराजा के द्रोहियों को, विद्रोहियों को ये योम शोहदा बनाना चाहते हैं। ये एंटी नेशनल एक सेंटेंस है योम शोहदा। उनको बोलना, मैं तो कहता हूँ ट्रेटर्स थे, वो द्रोही थे, वो दोबारा कभी योम शोहदा हो नहीं सकता है। 72 साल कांग्रेस की गलतियों के कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक षड्यंत्र रचा था और इस 13 जुलाई को योम शोहदा माना था, जिसको हम एंटी नेशनल मानते हैं। श्रीनगर में आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत। यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती LG तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत नुक्त चीनी करान वोन यम वमेद लूकन अत सरकारस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तमि मौकफ नश सठा दूर सपदमुत यम किन लूक तजब्जुबक शिकार सपद। और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनकी जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 से 2 इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ LG आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट LG हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी LG आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि कोई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी भारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज उस कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट, इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द बीजेपी MLA टू डिक्टेट इट? मगर स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले। जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल NC को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 या 48 जब से जम्मू कश्मीर का इल्हाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के
इसको अरेस्ट हो। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ ताहिर गेम असेंबली सेशनस हवाले कत करान वोनमुत ज प्रेत मेंबर सज कोशिश गस रोजन ज सेशनस दौरान यन लूकन हिंद मसले तुलने युद्ध जन यम मसले अंजरावनस हवाले सरकार तरफ कदम तुलने यन तो आम लूकन ते राहत वाते। लाजमी तौर पर आवाम की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने शिरकत की, कश्मीर में, जम्मू में, हर खिते में, और यही उम्मीद लेकर कि उनके जो मसाइल हैं उनका हल निकल सकता है और उन्हें राहत मिले, वो उनकी ख्वाहिश रही है। मैंडेट यही मिला है सरकार को, मैंडेट यही मिला है इस लेजिस्लेचर को, और हमें उम्मीद है जो अभी गवर्नर एलजी साहब ने एड्रेस पेश किया उसकी कापी भी टेबल होगी अभी, तो उस पर चर्चा होगी 2 दिन 3 दिन, और हर मेंबर को ये मौका मिलेगा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर लेगा और अपने मसाइल, अपने आवाम के मसाइल को भी उजागर करने का मौका है। कुल मिलाकर ये एक बड़ी इब्तिदा है, आगाज़ है, नई शुरुआत है, और उम्मीद है कि हमारा ये हाउस आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके और हम रास्ता और राहत पेश करने में कुछ कर सकें। ये आवाम की उम्मीदें हैं, और हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कम से कम हम सब मिलकर, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन एक साथ मिलकर रास्ता ढूंढेंगे, इलाज ढूंढेंगे। स्टेटहुड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये मरकज़ी सरकार ने ही पार्लियामेंट में लाना है, और अभी तक काफ़ी कोशिशें हुई है, मेमोरेंडम भी गया है, रेजोल्यूशन भी पेश किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है कि सेशन अभी फिर शुरू होने वाला है पार्लियामेंट का, लेकिन खबर नहीं है कि इस सेशन में कुछ होगा या नहीं होगा। बहरहाल देर करने से नुकसान होगा, जम्मू कश्मीर के आवाम को नुकसान होगा और मुल्क के लिए भी ठीक नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किस नजूमी से हम पूछे कि कौन सा मौसम बीजेपी सरकार को रास आता है। अरे कुछ करना है तो करो ना अपने आवाम के लिए। आपने वादा किया है सुप्रीम कोर्ट में भी, आपने वादा किया है पार्लियामेंट में भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर असेंबली जेडबल तनवीर सादिकन कशरन पंडितन हज घर वापसी तो नौजवान रोजगार फराहम करने हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ यम वाद करने आमत तम वाद इन हन पूरे करने। सर, कश्मीरी पंडितों को कब विस्थापित किया जाएगा? एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भी ये कहा गया, लेकिन कब, क्या लगता है कि कब वो समय आएगा? ये सवाल हमें पहले पीडीपी और बीजेपी से पूछना होगा, खासकर बीजेपी से, जो 5-6 साल से यहाँ हुकूमत है, कि एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। लेकिन जब भी आया तब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। उसी तरह हमारे मंशूर में भी लिखा हुआ है कि हम एक डिग्निफाइड रिटर्न करेंगे कश्मीरी पंडित्स का, कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है, अभी आगे आगे जैसे चलते हैं वैसे वैसे हम लोग वो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जहां कश्मीरी पंडित अपने घरों में आए। सबसे बड़ी बात है, उनको गेटोज में ना डालें, उनको एसिमिलेट करे बड़े मेजर जो मेजॉरिटी है उसके साथ। कोशिश तो रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक एडवोकेट रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस रहें। हमारी कोशिश भी आगे वही रहेगी। रोजगार को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो है वो बात कही गई है, उसको लेकर क्या? देखिए, 10 साल का जो बुराइयां हैं या जो तबाहियां हैं वो 10 दिन में अंडू नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकता है कि हम वो बुनियाद रख सके। वो बुनियाद जो होगी वो इस जो बजट है, जैसे उमर साहब ने कहा कि वो बजट में पेश करेंगे आस्ते आस्ते जो डिमांड्स है लोगों के। इसी तरह पहली बार चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इतना एग्जॉस्टिव डिस्कशंस प्री बजट लिया है, हर किसी लोगों के फीडबैक लिया है, उनको समझ के मुझे लगता है बजट में जो उनकी एस्पिरेशंस है उसको रिफ्लेक्ट जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, कश्मीरी पंडितों को कब विस्थापित किया जाएगा, उसको लेकर बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज ये आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई, यथ दौरान अक्सर इलाकन मज वक्फ रूद तो कैंसन इलाकन मज शीन पेन जारी तत महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमद यदि आज दोई दोहस जम्मू कश्मीर मज रूद तो शीन पेन इम्कान ताहम हे पगही पे मौसमस मज बेहतरी यत। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक मेजर स्पेल हुआ और उसके बाद मौसम जो है 2 दिन ड्राई रहा, फिर आज खासकर
2 लेट नाइट से एक स्पेल का पॉसिबिलिटी था, तो आज अर्ली मॉर्निंग में बारिशें हुई, पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी भी हुई है। तो करंट वेदर जो है अक्रॉस वैली और जम्मू डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगभग हर जगह बारिश और पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल जो चल रहा है। तो ये स्पेल जो है आज रहेगा, खासकर 3 मार्च को, और 4 को भी जो है कुछ 1-2 जगहों पे रह सकता है, लेकिन कोई मेजर स्पेल नहीं है 4 को। तो आज 3 को जो है पहाड़ी इलाकों के अंदर कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नोफॉल, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर अमूमन बारिशें रह सकती है, कुछ एक जगहों पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी उसको रूल आउट भी कर सकते हैं। और कमिंग डेज में लगभग 9 मार्च तक जो है वेदर अमूमन रहेगा। तो इस बीच दर्जे हरारत में खासकर डे टेम्परेचर में भी इजाफा होगा, मिनिमम टेम्परेचर जो है थोड़ा सा फॉल कर सकता है, लेकिन डे टेम्परेचर में एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज 3 को जो एक एक्टिविटी है, बाकी लगभग 9 मार्च तक जो है रहेगा। वर्ल्ड हियरिंग डे किस मौके पर आज बिजबेड़स में जेबा आपा इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग तरफ मुश्तरक पे अमे हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ जिम्मेदारों अलावा अमे नियामत नश महरूम लूको शिरकत कर। यल जन अत मौके पर जिम्मेदारों तरफ वन आव यम लूक समाजुक अहम हिस्सा इस पज यमन लूकन हुंद खास ख्याल थावन। वर्ल्ड हेयरिंग डे हमेशा मनाया जाता है और WHO ने आज एक थीम रखा है, चेंजिंग द माइंडसेट एंड केयरिंग फॉर हेयरिंग एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन, जिसका मकसद है कि हर कोई इंसान जिसको अल्लाह ताला ने एज़्ज़ा दिए है, कानों का बहुत ख्याल रखा जाए। एक बहुत बड़ा चंक है लोगों का जो जम्मू कश्मीर में भी, चाहे बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो, जवां साल लड़के लड़कियां हो, उनमें हेयरिंग इश्यूज़ बहुत सारे हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। और हेयरिंग के साथ साथ जो बच्चा सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता है, इसीलिए साइड बन जाते हो। उनका हेयरिंग टेस्ट किया गया और इसके साथ साथ ये जो मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स, ऑडियोलॉजिस्ट्स, जो अलाइड टीम आई थी, पैरामेडिकल स्टाफ आया था, तो इन्होंने जो मेहनत यहाँ पे की, इसका हम दाद देते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑडियोलॉजी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और वर्ल्ड के साथ साथ इस छोटे से एक कस्बे में भी ये दिन मनाने का यही मकसद रहा कि हर जगह एक आवाज़ उठे कि आप डिसेबिलिटी को हमें भगाना है और सेहतमंदी को यस कहना है। तो नाज़रीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।